السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحييه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله المولانا العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. আল্লাহ তাআলার ইহসান যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে কিছু সময় দ্বীনের নিসবতে জমা হওয়ার সুযোগ সময় করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করার কিছু চেষ্টা করেছি, যে বিষয়টা হচ্ছে ঈমান বিল কুফর, মানে কাফেরদের ঈমান। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ধরন প্রকৃতি, কাফেরদের ঈমান, কাফেরদের কর্ম সম্পর্কে কোরআনুল কারীমে কিছু কথা, খুবই অনেক আলোচনা। এখান থেকে কিছু কথা আমি জমা করেছি, যে এখান থেকে খোলাসা হবে যে কাফের আর মুশরিক আর মুমিন এরা এক না। কাফেরদের আলাদা একটা ঈমান আছে, ইয়ানি কাফের তারা আল্লাহ তাআলার লানত প্রাপ্ত জাতি, আর মুমিন তারা আল্লাহ তাআলার রহমত প্রাপ্ত জাতি। আমরা যদি আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির যে রিওয়ায়াতগুলো বর্ণনা আছে, এমনকি সূরা আরাফের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আমি আদমকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর বললাম আসজুদু লি আদম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন বলতেছে ফাসাজাদু মালাইকা ইল্লা ইবলিস, সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলিস ব্যতীত। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করতেছে, লিমা খালাকতা মা মানাআকা লিমা খালাকতা বিয়াদিক, মা মানাআকা তাসজুদু লিমা খালাকতা বিয়াদিক, মানে তুমি কেন সিজদা করলে না, কোন বিষয় তোমাকে সিজদা করা থেকে বাধা প্রদান করেছে, क्यों সিজদা नहीं किया आदम को। তো ওইখানে কি বলে শয়তান লানত, সে যে যুক্তিটা দিয়েছিল, সে বলতেছে যে খালাকতানি মিন নারি ওয়া খালাকতাহু মিন তিন, যে আল্লাহ तुमने मुझे आग से पैदा किया
और ये जो आदम है इनको मिट्टी से बनाया, আমাকে মাটি থেকে আমাকে আগুন থেকে বানিয়েছেন, আগুনের ধর্ম উপরে যায় আর মাটির ধর্ম নিচের দিকে আসে, মাটি নিচে থাকে। তো আল্লাহ তাআলা বলতেছেন উখরুজ মিনহা মাযমুমান মাদহুরা, বের হয়ে যাও এখান থেকে, অপদস্থ হয়ে বের হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন বের হয়ে যাও এখান থেকে অপদস্থ হয়ে, লানতের সাথে বের হয়ে যাও। इन्नहु मिनल काफिरीन, और ये काफिर में शुमार है। शैतान मलऊन जो है ये काफिर में शुमार है। মানে শয়তানের কাফেরদের শুরু হয়েছে শয়তান থেকে। কুফরির শুরুটা কোথা থেকে? শয়তান থেকে। आज की दुनिया में जितने भी काफिर हैं इनका बाप दादा जो है शैतान से मिलते हैं। जितने भी काफिर है दुनिया में इनका नस्ल जाके शैतान से मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अखरुज मिनहु मज़मूमन मदहुरा, एखान से निकल जाओ यहाँ से और लानत के साथ निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। और इन्नहु मिनल काफिरीन, और इसलिए इसने सजदा नहीं किया कि वो ये काफिर में शुमार है, ये काफिर है। आज की दुनिया में जितनी भी काफिर है अल्लाह से गुस्ताखी करने वाला है, सब के सब शैतान की औलाद है। और जो इंसान है वो बनी आदम है, सिर्फ वही है अल्लाह की महबूब जो ईमान वाला है, अल्लाह से ईमान रखने वाला है। और जो कुफर करने वाला है वो शैतान पर ईमान रखने वाला है, हत्ता कि वो शैतान के साथ मोमिन के खिलाफ जिहाद भी करने वाला है, जंग भी करने वाला है। कुरान मजीद में आते हैं अल्लाह ताला फरमाता है जो शैतान है और शैतान की नस्ल है युक़ातिलु औलियाहुम शैतान व तागूत, ये मोमिन के खिलाफ जंग ऐलान करते हैं, मोमिन के खिलाफ और शैतान की तागूत की साथ देते हैं। यानी जो है साफ साफ बयान है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ी खलक़कुम फमिनहुम काफ़िरुन व मिनहुम मुमिन, मैंने लोगों को इंसान को बनाया और इनमें से दो तकसीम हुआ, एक शैतान की इताअत करने वाला काफिर और जो है एक दूसरे मोमिन अल्लाह की इताअत करने वाला। एक काफिर एक मोमिन। शैतान की इताअत करने वाला कभी अल्लाह की बंदा नहीं हो सकते, जितनी भी दवा लगाए, जितनी भी मजहबी ऐलान लगाए, मजहब के पीछे जंग करे, कुछ भी फायदा नहीं है, वो शैतान की औलाद है। और जो मोमिन अल्लाह के ऊपर मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जो ईमान रखने वाला है अल्लाह के ऊपर, आखिरत के ऊपर ईमान रखने वाला है, अल्लाह ताला उनके लिए वादा किया है जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उनको ऐसे जन्नात अल्लाह अता करेगी जिसके नीचे से नहर पैदा होगा, शहद की नहर होंगे, दूध की नहर होंगे। खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे भाई दोस्तों, मोमिन और काफिर, ईमान और कुफर, ये दोनों दो कभी एक नहीं हो सकते। आज के तो इंटरफेथের নামে যে ফিতনা জমিনে ছড়িয়ে পড়েছে, ইন্টারফেথ যাকে বলা হয়, আন্তধর্মীয় মানে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি। তারা এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কিছু মুসলমানও আছে, কিছু টুপিদারিওয়ালাও থাকে। তার আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তারা বলে সবাই মানুষ, মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রাধান্য দাও, हर कोई इंसान है। तो हम भी कहते हैं कोई जानवर तो नहीं है, सब इंसान ही है, लेकिन इंसान में भी फ़र्क होते हैं। वो भी कहते हैं कि सब इंसान है, इंसानियत को पहले करार में रखो, कि इंसानियत रखो, बदे मज़हब बाद में आते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि भाई पहचान मज़हब से होता है, तुम्हारी पहचान गुलामी से होते है, अल्लाह की इबादत से होते है। तुम अब्दुल्लाह या अब्दुल शैतान, ये दो की पहचान होते हैं दुनिया में।
कि अल्लाह की इबादत करने वाला है या शैतान की इबादत करने वाला है। अल्लाह ताला भी वही फरमाते हैं कि पहचान दो ही होगा सिर्फ, হয়তো আল্লাহর গোলামি করবে নয়তো শয়তানের তাগুতের গোলামি করবে। এই জন্য ইন্টারফেইথ নামে যে নতুন ফিতনার আবির্ভাব হয়েছে, এটা আমাদের মুসলিম সমাজের ভিতরে কিভাবে রন্ধে রন্ধে যুব সমাজের ভিতরে এমনকি মসজিদের ইমাম সাহেবের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এজন্য তাদের একদল গ্রুপ কাজ করে মাঠে ময়দানে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বুঝাইতেছে যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সবাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জাতি, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকো, মাযহাবী বিভেদ থেকে সবাই আলাদা থাকো, মাযহাবের বিভেদ থেকে তোমরা বের হয়ে যাও। यानी मजहबियत की जो तकसीम है ये लोगों ने बनाया, ये अल्लाह ने नहीं बनाया। उनकी कहना ये है, इंटरफेथ का मतलब है सारे जितने इंसान है सब इंसान है, इसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चियन को कोई फ़र्क नहीं करो, सब मुसलमान इंसान है, इंसान बन के रहो। अगर इंसान बन के रहना है तो अल्लाह ताला क्यों फरमाते हैं या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, काफिर की अल्लाह ताला काफिर को मुखातिब करके फरमाया, लोगों को नहीं फरमाया। अल्लाह ताला लोगों को भी कुछ ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास वअबुदुल्लाह, हे लोगों अल्लाह की इबादत करो। जब अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम मोमिन है, और जब शैतान की इबादत करोगे तुम शैतान की ताबूत की बंदा है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये इंटरफेथ जो हमारी मुआशरे में आज की मिसाल है, सारे जगह में है। हो सके कि आपके ऊपर मेहनत हुआ नहीं अभी तक, आपकी घर पर मेहनत हो रहा है, इमाम साहब के पीछे मेहनत हो रहा है, मुअज्जिन की सब मेहनत हो रहा है, मौलाना साहब के पीछे, इस तरह से आपको समझाएगी कि आप ये समझेंगे कि हाँ यही सही बात है, इंसान सबसे ऊपर है, इंसानियत का सब बरकरार रखो, मजहबी फ़र्क से निकल जाओ, यानी मजहब को छोड़ो, इंसान बन के रहो। अगर इंसान बनना है तो हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, क्रिश्चियन भी इंसान है। फिर हमारी बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया गया, उनको क्यों गिरा के वहाँ मंदिर बनाया गया, ये जवाब दो। बाबरी मस्जिद को क्यों गिराया गया? अगर तुम्हारी इंसानियत होता अंदर तो तुम बाबरी मस्जिद के ऊपर हाथ नहीं लगाते। इंसानियत की बात करता है ना, जब दिल्ली में दांगा हुआ तो मुसलमान गौरव को जला दिया गया, क्या क्यों किया गया ऐसा? इंसानियत की बात करता है ना। कश्मीर के मुसलमान 6 महीने बिजली और इलेक्ट्रिक से अलग करके रखा है, दुनिया से अलग करके रखा है। कितने सारे जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर, क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन के ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? अराकान से मुसलमानों को क्यों निकाला गया? इंसानियत का बात तो करते हैं ना, तो हम भी इंसानियत का बात करते हैं। आज जब इंसान बन के रहे तो मुसलमान को अपनी हक क्यों नहीं देते हैं? मुसलमान की माइक से अजान होते तो आपको तकलीफ क्यों होता है? जब हम सालों में 13 दफ़ा 24 दफ़ा 25 दफ़ा पूजा करते हैं ढोल ढाल बजा के, तो हमारी तकलीफ नहीं होता है? हम तो कहते नहीं है कि भाई हमें तकलीफ होता है, तो तुम्हें माइक के अजान से तकलीफ क्यों होता है? इंसान की बात करता है ना, इंसानियत तो तुम्हें चाहिए। ये तो शैतानियत है कि अपनी बात लोगों पर बरकरार कर देता है, मुसल्लत कर देता है और अपने आप को इंसान दावी करता है कि हम इंसान हैं। इंसानियत की बात करता तो हर एक के हुकूक ज़रूर पूरा होना चाहिए। जब हिंदुस्तान में रहोगे तो मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी इंडियन है, हिंदू भी इंडियन है, क्रिश्चियन भी इंडियन है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। मेरे भाई दोस्तों, इंसानियत के नाम पे जो इंटरफेथ की फितना आपकी मुआशरा में फैला जा रहा है, इनका मतलब ये है कि आप इस्लाम को छोड़ के इंसान बन जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम बन जाओ, उनके बाद इंसान बन जाओ। बस इंसान बन गया, उससे कोई आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ईमान के साथ उनकी दुश्मनी है, तुम्हारी और हमारे साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी ईमान और इस्लाम के साथ, इस्लाम के साथ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, मक्के में थे, तो उस सबकी महबूब थे, सब उन्होंने उनको मोहब्बत करते थे, सब मोहब्बत करते थे। जब ईमान की, अल्लाह की वहदानियत की दावत देना शुरू कर दिया
तो अपनी सारे दोस्त अहबाब जो है दुश्मन बन गया। यानी दुश्मनी ईमान से है, दुश्मनी मोहम्मद से नहीं है, दुश्मनी ईमान की दावत से है, अल्लाह की वहदानियत से है, अल्लाह की रबूबियत से है। रब होने पर दुश्मनी है, इबादत अल्लाह के लिए होना इस पर दुश्मनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुश्मनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर लोग क्या कहते थे जब दावा देते थे? तो कहते उखरुज मिन अर्दिना, तुमको हम जमीन से निकाल देंगे, हमारे मुआशरा से निकाल देंगे, हमारे मुल्क से निकाल देंगे, तुम्हें हमें जमीन से निकाल देंगी अगर तुम हमारी बाप दादा की मजहब में, धर्म में वापस नहीं आते। तुम्हारे ऊपर दो ऑप्शन हमने छोड़ा है, या तो निकल जाओ हमारे मुल्क से, या तो हमारी धर्म में वापस आ जाओ। जो आज के मलाउन ने भी दावा यही करते हैं। हमने कई सारे वीडियो दिखा है, कई सारे वीडियो में हमने यही बात दिखा है। कहते हैं मुसलमान अगर हिंदू बन जाते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, अगर हिंदू नहीं बनते तो जाओ पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, अफगानिस्तान जाओ। क्या वो कोई आसमान से गिर के आया हिंदुस्तान में? या तो पाकिस्तान से आया, हिजरत करके पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आया? कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। तुमने आसाम की 20,000 परिवार को काराबंद करके रखा है, बंद करके रखा है। कहता है ये बांग्लादेश से आया, लेकिन तुम्हारे पास आज एक भी सबूत भी नहीं मिला कहती ये बांग्लादेश से आया है। सिर्फ बांग्ला जबान बोलने वाला है इसलिए बांग्लादेश से आया है। दुश्मनी किससे है मेरे दोस्तों? और वहाँ हिंदू लोग भी हैं, बहुत से हिंदू लोग भी हैं, उनकी घरों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचता है। हमने कल भी एक रिपोर्ट देखा है ARE चैनल का, हिंदू इंडियन की चैनल के, उस पर APR चैनल में देखा है हिंदू फैमिली है लेकिन उन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमान घरों को तोड़ दे रहा है। पूछा जा रहा है कि भाई आप तो हिंदू है, आप भी बांग्ला जबान बोलने वाला है, आप पर कोई कुछ नहीं बोलते? कहते नहीं हमारे ऊपर तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है। मतलब किसे? मतलब इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुसलमान से और ईमान वाले से, बांग्लादेशी से और हिंदुस्तान से, पाकिस्तानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, ईमान और कुफर की जो आज की दुनिया में जो जंग हो रहा है सिर्फ ईमान और कुफर की जंग है। आज तुम नहीं समझोगे, जब तुम्हारे ऊपर ये मुसलत हो जाएगी, तुम्हें दबाएगी, तुम्हारे घरों को जलाएगी, तब तुम होश में आओगे कि मेरे क्या करना था। 2 दिन पहले अगर ये हम समझ जाते थे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होते थे कि भाई हम हो सकते कि अल्लाह की गुलाम बन के दुनिया से जा सकते हैं। ईमान को बचा के लो मेरे दोस्तों। वो इंसान तो हर कोई है, लेकिन हर कोई मुसलमान नहीं है, हर कोई ईमान वाला नहीं है। जो ईमान की तकाज़ा अल्लाह ताला ने पेश किया है, जो ईमान की दावत के साथ इतने सारे पैगंबर को दुनिया में भेजा था, वो हर कोई नहीं है, उनको मानने वाला भी हर कोई नहीं है। अक्सर लोग जो है, अक्सर हम काफिरून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, दुनिया में अक्सर लोग जो है वो काफिर है। आज कुफर और ईमान की जो फासला है उनको मिटा देना चाहते हैं कि भाई मिटा दो कुफर और ईमान की फासला, सब इंसान बन जाओ। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 चीज अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम ईमान की लज्जत मिलेगी तुम्हें। 3 चीज कहते हैं, अहब्बलिल्लाह और रसूल ही, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह रसूल के लिए होगा। 1 नंबर सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह की रसूल के लिए होगा। वमन अहब्बन नास ला युहिब्बुहु इल्ला अल्लाह, अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत होगा, यानी मोहब्बत लोगों से करता है, उनके भी पीछे अल्लाह की मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्री, अगर वो ईमान में दाखिल होने के बाद उनको ईमान से कुफर की तरफ मोड़ करना पड़ता है, यानी कुफर के कुछ काम उससे हो जाते हैं, कुफरी मुआशरे के मुतासिर हो जाते हैं, कोई काम कुफरी ऐसे कर लेता है, आइए खुदा फिन्नार, कहते हैं आग में डाल देने से भी ज़्यादा तकलीफ होना चाहिए उनको। किसी ने उनको जला दिया, राख कर दिया, सोले में चढ़ा दिया, उनको जितनी तकलीफ होगा एक कुफरी से उनको इससे ज़्यादा तकलीफ होना चाहिए। अगर वो इतनी 3 चीज़ हमारे अंदर हैं तो जान लो कि तुम मुसलमान हैं, मोमिन हैं।
मेरे भाई दोस्तों, आज सारे दुनिया में जितनी भी जंग हो रहा है ना, ये जो देखो यहाँ वहाँ के मार रहे काट रहे, सब पीछे एक ही मकसद है कि ईमान को छोड़ दो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो सीधा नहीं बोलते, कुछ लोग तो सीधा भी बोल देता है, जो कट्टर है वो सीधा भी बोल देता है, लेकिन अक्सर जो है सीधा नहीं बोलता है कि भाई छोड़ दो ईमान को, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन उनकी मुआशरा से यही दावत पेश आता है कि छोड़ दो ईमान को, बस तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला इस जालिम की जुल्म से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनअक़ु बिमा ला यस्मअू इल्ला दुआ व नालिदा। जो काफिर है उनकी मिसाल क्या है पता है? कि उनकी मिसाल ये है कि उनकी कान है लेकिन सुनते नहीं है, उनको कोई पुकारता है लेकिन उन्होंने सुनता नहीं है। ला यस्मअू इल्ला दुआ, कहते वो सुनते नहीं है, वो बोलते भी नहीं है। वो जो सुनते हैं उनके सामने कोई चित्कार करके आवाज़ से पुकारता है कि भाई आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ। अमन आज़लमु मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व यदअू इलल इस्लाम, कहते हैं उनको इस्लाम की तरफ पुकारता है, फिर भी जाके अल्लाह से कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई नहीं बोला कि इस्लाम में आ जाओ। सबसे बड़ी जालिम ये है, अल्लाह ताला फरमाता है अमन आज़लमु मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन व यदअू इलल इस्लाम। उनको इस्लाम की तरफ बुलाया था, इस्लाम की दावत उनके सामने पेश हुआ था, इस्लाम की मुआशरा में थे, मुसलमान के साथ भी थे, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं मुझे कोई इस्लाम में नहीं बुलाया था, मुझे पता ही नहीं था इस्लाम क्या चीज़ है, मुसलमान क्या चीज़ है। सबसे बड़े जालिम अल्लाह ताला फरमाता है उससे बढ़कर जालिम कौन है? जिनको इस्लाम की दावत भी दिया था, दावत को इनकार भी रद्द भी किया था, बाद में कहते कि नहीं मुझे कोई दावत नहीं मिला था। अल्लाह ताला और भी फरमाता है मसलुहुम कमसलिल लज़ी अस्तक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हवलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। कहते हैं उनकी मिसाल ये है कि उन्होंने खुद, एक आदमी ने आग जलाया और उनकी चारों तरफ जो आग से रोशन हो गया, आग जलाया और आग से चारों तरफ रोशन हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनकी आग को किसी ने पूजा दिया, उससे छीन लिया, आग को छीन लिया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया, अंधेरे में छोड़ दिया। अभी वो रास्ता नहीं दिखते कि वो दाई में जाएगा या सीधा जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, किधर जाएगा, उनको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास नूर थे, उनके पास नूर थे। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि दुनिया में जब इंसान को पैदा करते हैं हर अलमौलूदु युलदु अलल फितरा, यानी इस्लाम के ऊपर मौलूद जो है, बच्चे जो है दुनिया में आते हैं, इस्लाम के ऊपर आते हैं। वलाकिन अबाउहुम यहूदिया वला नसरानिया वला मजूसिया। इनकी बात जब दुनिया में आते हैं तो उनकी माँ बाप उनको यहूदी बनाता है, उनको क्रिश्चियन बनाता है, उनको मूर्ति पूजा करने के सिखाता है, उनको अग्नि पूजा करने को सिखाता है, यानी काफिर बनाते हैं उनकी माँ बाप। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है उनकी मिसाल ये है, जब आया था दुनिया में उनके साथ रोशनी था, उनकी माँ बाप ने उनके उससे रोशनी छीन लिया, उनको अंधेरे में छोड़ दिया। अब वो किधर भी जाने का रास्ता नहीं मिलते, बस घूमते रहते हैं कि मैं कि इस्लाम में जाऊँ या हिंदू में जाऊँ। कभी क्रिश्चियन बन जाता है, हिंदू बहुत अभी क्रिश्चियन बन रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हिंदू लोग जो है कुछ मुसलमान भी बन रहा है, कुछ क्रिश्चियन, ज़्यादा अक्सर क्रिश्चियन बन रहे हैं। आजकल जो है ज़्यादा क्रिश्चियन बन रहा है, क्योंकि मालूम है उनके पीछे माल है। क्रिश्चियन मानोगे तो तुम्हें माल मिलेगी, तुम्हारी फैमिली की सारी जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी, क्योंकि रेशन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगी, घर भी मिलेगी, मकान भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी दुनिया में तुमको। इसलिए क्रिश्चियन बन रहे हैं, ये मजहबी फ़र्क है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, ईमान बहुत कीमती चीज़ है। काफिर ईमान और कुफर की जो लोग फ़र्क नहीं करते हैं, फतवा की किताब में एक लफ्ज़ है, फतवा की किताब में एक लफ्ज़ है, उन फरमाते हैं जो इंसान काफिर और मोमिन यानी ईमान और कुफर में फ़र्क नहीं करते वो काफिर है, यानी ईमान और कुफर में फ़र्क नहीं करते वो खुद काफिर है। क्यों पता है?
जो अल्लाह की नफरमानी करते हैं, सजदा सजदा मूर्ति के सामने करते हैं, सवाल मूर्ति से करते हैं, अल्लाह को छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लेता है, अल्लाह को छोड़ के मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बना लेता है, अल्लाह को छोड़ के उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा बना लेता है, ये कैसे मोमिन हो सकते हैं? ये ईमान वाला कैसे हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ के मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया? अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह मसीह इब्न मरियम। उसने कुफ्र किया है जिसने कहा कि मसीह अल्लाह है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह, खुद अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उसने कुफ्र ही किया है। और क्रिश्चियन की दो जमात है, एक जमात की अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीह अलैहिस्सलाम जो है जीसस, वो खुद खुदा है और खुदा जो है जीसस की शक्ल में दुनिया में आया। इनके ऊपर बहुत बहस भी होता है, यानी ये काफिर है, इनके साथ बहस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कह दो कि तुम अल्लाह पर ईमान रखने वाला है तो तुम्हें बहस करते हैं, अगर ईमान रखने वाला ही नहीं है तो तुम्हें बहस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम काफिर है। अगर तुम काफिर है, मुर्ताद है, नास्तिक है, दुनिया में इस्लाम को छोड़ देता है, तुम्हारे साथ बहस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला है, हम आखिरत के ऊपर ईमान रखने वाला है, रिसालत के ऊपर ईमान रखने वाला है, तकदीर के ऊपर ईमान रखने वाला है और मलाइका के ऊपर ईमान रखने वाला है। मेरे भाई दोस्तों, ये काफिर लोग जो है ना आज हमारे पीछे सबसे पीछे मेहनत करता है, आवाम के पीछे जो इस्लाम के इल्म नहीं रखने वाला है, गांव में जाके, बहुत दूर दूर गांव में जाके समझाता है कि ऐसे मुसलमान बन जाओ जिस मुसलमान से किसी को कोई तकलीफ ना आ जाए। वो क्या मुसलमान है? वो ईसाई मुस्लिम है। वो जो क्रिश्चियन मिशनरी होता है ना, क्रिश्चियन मिशनरी सारा दुनिया में है। हमारे मुल्क में बहुत से है क्रिश्चियन मिशनरी, अपना चिन्हबें सारा बांग्लादेशे আছে क्रिश्चियन मिशनरी। তাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে ঈসাই মুসলমান বানাবে, ঈসাই মুসলিম। আপনার সন্তানকে খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করছেন তো সফল হয়ে গেছেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের স্কুলে ভর্তি করছেন এই জন্য আপনার সন্তান ইংলিশ শিখবে, ভালো কিছু শিখবে, স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবে, আধুনিক হয়ে যাবে। আপনি যখন আপনার সন্তানকে ভর্তি করার জন্য ফর্মের মধ্যে সিগনেচার করছেন, ওই ফর্মটা পড়ে দেখছেন একবার কি লেখছে এখানে? আমি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় আমি এবং আমার সপরিবারে ঈসাই মুসলিম হওয়ার জন্য এই পত্রের মধ্যে স্বাক্ষর করতেছি যে আমরা ঈসাই মুসলিম হওয়ার জন্য তৈরি। ঈসাই মুসলিম। ঈসা আলাইহিস সালাম কি খ্রিস্টান ছিলেন? আপনারা জানেন ঈসা আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান ছিলেন? আজকাল মনে করা যে ঈসা আলাইহিস সালাম মনে খ্রিস্টান ছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম খ্রিস্টান ছিলেন না। ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলতেন ওয়াবুদুল্লাহ ওয়াতিউনি, ইবাদত আল্লাহর করো, এতাত আমার করো। ইবাদত কার? আল্লাহর, আমার অনুগত করো। লা তুশরিকা বিহি শাইআ, আল্লাহ তার সাথে কোনো শরীক করবে না। আর যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করো, হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, তোমাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেওয়া হবে। এই জন্য ঈসা আলাইহিস সালাম কি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে পরিচয় দিতেন। ঈসা আলাইহিস সালাম যখন জন্ম হয়েছে, মারিয়াম আলাইহিস সালামের কোলে ছিলেন, তখন তাকে যখন মারিয়াম আলাইহিস সালামকে ইহুদিরা কষ্ট দিতেছিল, তখন বলতেছিল এই বাচ্চার সাথে কথা বলো। তখন বাচ্চা কি বলছিল? ইন্নী আব্দুল্লাহ আতানিয়াল কিতাব ওয়াজআলানি নাবিয়্যা ওয়াজআলানি মুবারাকান আইনামা কুনতুম, এই কথাগুলো বলছিলেন। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह गुलाम, आतानी अल किताब, हम अल्लाह के गुलाम हैं और मुझे एक किताब अल्लाह ताला ने दिया है। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, और हमें नबी बना के तुम्हारे ऊपर भेज दिया गया, तुम्हारी मुआशरा में भेजा है, तुम्हारी कौम के ऊपर भेजा है, इसलिए कि तुम्हें भी मुसलमान बनाए, क्रिश्चियन नहीं बनाए, मुसलमान बनाए। क्रिश्चियन बनाने के लिए ईसा अलैहि सलाम को नहीं भेजा गया, जीसस को। उन्होंने खुद कहता था इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह की गुलाम है, और तुम उनकी इबादत करते हैं। बेशरम,
जो खुद अल्लाह की गुलामी करता है, तुम उनकी इबादत करते, कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम, कहते हैं खुद ईसाई अल्लाह है। कितने दिमाग खराब इंसान है यार। फिर कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये बना बना के बोलते हैं, यानी जो ना मानने वाला है उनके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं, उन्हें बहाना बनाए लेके बस हम मानने वाला ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है काफिर के लिए, काफिर के मिसाल क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो कुफ्र क्या है, तुम इनको होशियार करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मानने वाला ही नहीं है। যারা কুফরি করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো আর না করো, এতে তাদের কোনো কিছু আসে যায় না, তারা মানবেই না। খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম, তাদের কানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কান, চোখ আর দিমাগের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন। মোহর মানে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন, তারা কুফরের উপরে মরে যাবে। তারা এমন কাফের যে তারা মাননেওয়ালাই নাই, তারা মানবেই না। এটা তুমি তাদেরকে বুঝাও আর না বুঝাও, এটা কাদের ব্যাপারে? ওই সমস্ত কট্টর কাফেরদের ব্যাপারে, কট্টরদের ব্যাপারে, যারা নিজেদেরকে কাফের তো কাফের, কাফেররা আবার দলিলও দেয় যে কাফেররা জান্নাতে যাবে, এই সমস্ত লোকদের। কারণ তাদের দলিল তাদেরকে গোমরা করে দিয়েছে। যে আল্লাহ তাআলা বলতেছে ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইসলাম একমাত্র দিন। ওয়া মাখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিন বা'দি মা জাআহুমুল ইলম বাগিয়ান বাইনহুম। दीन सिर्फ इस्लाम है और कोई दीन नहीं अल्लाह के पास। और इन्होंने मुखालिफ तब किया जब इनके सामने अल्लाह की किताब को पेश किया गया, तब इन्होंने मुखालिफ किया। मख्तलफ अल्लज़ीना उतुल किताब, जब हमने किताब दिया नबी को और जाके उनको पेश किया कि मैं अल्लाह के रसूल है, मुझे किताब दिया गया, तब इन्होंने मुखालिफ करना शुरू कर दिया। ये लोग काफिर है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावत, ये समझेगी नहीं, सुनेगी भी नहीं है और बोलेगी भी नहीं है, उनकी दिमाग में मोहर लगा देगी। क्यों? ये कट्टर है, कट्टर। कट्टर का भी ईमान की नूर नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, जैसे मुनाफिक के कभी नहीं मिलेगा, कट्टर को भी कभी नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में जितनी भी मुसलमान को मार रहा है, काट रहा है, वो कोई आम हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत अच्छे हिंदू है, मैं देखा है, खुद उन्होंने बोलता है कि भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान की इंसान है, मुसलमान भी यहाँ की जो पब्लिक है उनको क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है। हम भी हिंदू है, हमारी जैसे आज़ादी है उनकी भी आज़ादी है, वो भी इधर की इंसान है, वो भी उनकी बाप दादा भी यहाँ की है। इनको इंसानियत कहते हैं कि भाई तुम अपने मज़हब को मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन दूसरे की क्यों जुल्म कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ो या तो अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। इसको कहते हैं कट्टर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिल में मोहर लगा दिया गया, ये इनको हिदायत कभी नहीं मिलेगी और ये सीधा अल्लाह की नार में जाएगा। नार जहन्नम अशद्दु हर्रा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्रुन। कहते हैं जो काफिर है वो कुफर के ऊपर इंतकाल किया, मर गया, इंतकाल तो नहीं किया, मर गया, यानी कुफर है, कुफर के ऊपर मर गया है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्रुन, ईमान के ऊपर, कुफर के ऊपर मरा हुआ है। लानतल्लाह, अल्लाह ताला उन पर लानत करते हैं। व लाना मलाइका, तब मलाइका भी उनके ऊपर लानत करते हैं और इनका ठिकाना सीधा जहन्नम में। अल्लाह ताला हमारे ईमान को हिफाजत फरमाए और दुनिया की काफिर की साजिश से हमारे ईमान को बचाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।